everyone. Online classes, class 8th, subject SST, chapter 3, part 3. The areas where the uprising was most widespread were Delhi, Awadh, Ruhelkhand, Bundelkhand. The areas around Allahabad, Agra, Meerut and western Bihar. In these regions, large number of civilian population participated in the struggle, and the most ferocious battles were fought in Bihar. The rebel forces commanded by Kuwar Singh fled part of Bihar and come to help the freedom fighters in Lucknow and Kanpur. In Delhi, the chief commander of the troops was Bhagat Khan. In Kanpur, Nana Sahib was proclaimed the Peshwa by the freedom fighters with Azimullah Khan as his chief advisor. Nana Sahib troops were led by above and able leader Tata Tope. In Jhansi, Rani Lakshmibai was proclaimed the ruler, and she led her troops into battle heroically. In the eastern part of Uttar Pradesh, the freedom fighters were joined by the Sikh regiment from Ludhiana, and Gorakhpur and Azamgarh had to be evacuated by the British troops. Early in July, Birjis Qudr, the young son of Wajid Ali Shah, was made the Nawab of Awadh under the regency of his mother Hazrat Mahal. The freedom fighter led by Maulvi Ahmadullah besieged the Lucknow residency, and the siege lasted for several months. दिल्ली, अवध, रूहेलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद के आसपास के इलाकों, आगरा, मेरठ और पश्चिम बिहार में आंदोलन काफ़ी व्यापक और भयंकर थे. इन इलाकों में लोगों ने भारी संख्या में क्रांति में भाग लिया और भयंकर लड़ाइयाँ लड़ी. बिहार में आंदोलन का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया. वहाँ आंदोलनकारियों ने बिहार के कई हिस्सों को स्वतंत्र किया और वह लखनऊ तथा कानपुर के आंदोलनकारियों की सहायता के लिए आए. दिल्ली में विद्रोही सेना के मुख्य सेनापति बख्त खां थे. कानपुर में आंदोलनकारियों ने नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया और आजिमुल्ला खां उनके मुख्य सलाहकार बने. नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व टाटा टोपे कर रहे थे. वह एक बहादुर और योग्य नेता थे. झांसी की रानी के शासक घोषित कर दिया गया. उन्होंने लड़ाई में बड़ी बहादुरी से अंग्रेज़ों का मुकाबला लुधियाना के सिख रेजिमेंट के सैनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के आंदोलनकारियों से जा मिले. ब्रिटिश फौज ने गोरखपुर और आजमगढ़ से पलायन किया. जुलाई के शुरू में वाजिद अली शाह के बेटे बिराजिस कादर को अवध की गद्दी में बैठाया गया. उसकी मां हजरत महल उसकी ओर से शासन करने लगी. मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में लखनऊ की रेजिडेंसी को घेर लिया गया. यह घेरा कई महीनों तक रहा. सेपरेशन ऑफ द स्ट्रगल थॉट आउट द स्ट्रगल. द हिंदूज एंड द मुस्लिम fought shoulder to shoulder. The British put efforts to create a rift between the Hindus and Muslims. They, for example, continued rupees 50,000 to be spent in Bareilly in an attempt to rouse the Hindus there against the freedom fighter led by Khan Bahadur Khan, but all such attempts failed. The leader of the struggle recognized Bahadur Shah as the Emperor of India. He had emerged as the symbol
of unity for all those who were fighting to overthrow the foreign rule. However, despite of the widespread nature of the struggle, within a year it was suppressed. Delhi was recaptured by the British in September 1857. Bahadur Shah was taken prisoner. He was tried and exiled to Rangoon in Myanmar, where he died in 1862. In September 1858, Lucknow fell to the British troops, and Begum Hazrat Mahal, refusing to surrender, escaped to Nepal. Rani Lakshmibai, who had become famous as the Rani of Jhansi, was driven out of Jhansi with the help of Tatya Tope. Rani Lakshmibai feared the British, but the British military officer heroes captured Jhansi on 3 April 1858. Rani Lakshmibai and Tatya Tope reached Kalpi on 4 April 1858, but in May 1858 the British forces captured Kalpi. Rani Lakshmibai and other leaders were the Gwalior fort. With the help of Tatya Tope, she saved Gwalior and was killed in the battlefield. In June 1858, the British fired to win the Gwalior fort. Tatya Tope bravely faced the British for 2 years in Madhya Pradesh and Rajasthan, but due to betrayal of a friend, the British kept him. He was hanged to death. Kuwar Singh died in April 1858 after sustained fatal wound. The struggle was crushed by the end of 1858. Thought it took the British many more years to restore peace. आंदोलन का दमन। आंदोलन के समय हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की। उदाहरण के लिए उन्होंने बरेली में खान बहादुर खान के नेतृत्व में खिलाफ हिंदुओं को लड़ाने के लिए 50,000 रुपये मंजूर किए, मगर ऐसी तमाम कोशिशें बेकार रहीं। आंदोलन के नेताओं ने बहादुर शाह को हिंदुस्तान का बादशाह माना। वह विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष कर रहा था। संघर्ष कर रही जनता के लिए एकता का प्रतीक बन गया, किंतु आंदोलन का व्यापक स्वरूप होने पर भी 1 साल से अधिक समय बाद भी दबा दिया गया। सितंबर 1857 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। बहादुर शाह को बंदी बनाया गया। उन पर अभियोग चलाकर रंगून म्यांमार निर्वासित कर दिया गया। वहीं पर 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। सितंबर 1858 ईस्वी में लखनऊ पर ब्रिटिश शासकों का कब्जा हो गया, मगर बेगम हजरत महल ने समर्पण करने से इनकार कर दिया। वह नेपाल चली गई। झांसी की रानी ने तात्या टोपे के साथ अंग्रेज़ों का सामना किया, किंतु 3 अप्रैल 1858 को अंग्रेज़ सेनाधिकारी हिरोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे 4 अप्रैल को कल्पी पहुँचे, किंतु मई 1858 में कल्पी पर भी अंग्रेज़ों ने सेना ने अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई के अन्य नेताओं ने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। जून 1858 में ग्वालियर पर अंग्रेज़ों ने अधिकार करने का प्रयास किया। रानी लक्ष्मीबाई के अत्यंत वीरतापूर्वक अंग्रेज़ों का सामना किया। वह वीर गति प्राप्त की। तात्या टोपे मध्य प्रदेश और राजस्थान में अंग्रेज़ों से 2 साल तक लड़ते रहे। एक मित्र के विश्वासघात के कारण वह अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। उन्होंने फांसी दे दी गई। अप्रैल 1858 में गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। 1858 के ईस्वी के अंत तक आंदोलन को नियंत्रित कर लिया गया, मगर पुनः शांति स्थापित करने में अंग्रेज़ों को कई साल लगे। The struggle was suppressed with an iron hand by the British. Revolutionary Indian soldiers and common men were massacred by victorious English troops. A large numbers of villages
were razed to dust. British soldiers looted the villages which supported the revolutionary during the revolt. Freedom fighters in large number were executed and inhuman tortures were inflicted on others. आंदोलन का दमन के दौरान और उनके बाद ब्रिटिश सैनिकों ने आंदोलनकारी नेताओं और सैनिकों और आम जनता के साथ अमानवीय व्यवहार किया। विजयी ब्रिटिश सैनिकों ने बड़े पैमाने पर अत्याचार किए और बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बहुत से गांवों को मिट्टी में मिला दिया। शहरों में आंदोलनकारियों के कब्जे से मुक्त कराने के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने वहां खूब लूटा। अनुमान लगाया जाता है कि अकेले अवध में करीब 1.5 लाख लोगों की हत्याएं हुई। बहुत बड़ी संख्याओं में आंदोलनकारियों को फांसी पर चढ़ाया गया और दूसरे को अमानवीय यातनाएं दी गई। केसेस ऑफ द फेलियर ऑफ द स्ट्रगल। स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण द स्ट्रगल ऑफ 1857 इज ए glorious chapter in the history of India. For the first time, different regions of the India appeared united against a common enemy. A large number of freedom fighters come forth and were now for their courage and love for motherland. The heroes like Rani Lakshmibai, Tata Tope and Wakht Khan become a source of inspiration and patriotism to the succeeding generations for Indian people in their fight for freedom. सन 1857 के आंदोलन का भारतीय इतिहास में गौरवशाली अध्याय था। पहली बार देश के विभिन्न भागों के बीच एक ऐसे शासन के खिलाफ एकता स्थापित हुई जो सबका शत्रु था। आंदोलन में अनेक नेता और योद्धा उभरे जिनकी वीरता और बहादुरी में उनका अमर बना दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे और बख्त खां जैसे नेताओं की वीरता आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और देश प्रेम की स्रोत बनेगी। द स्ट्रगल हाउएवर हैड कंटेन बेसिक वीकनेस विच मेड इन इट्स सक्सेस अनलाइकली। द लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल वाज इन द हैंड ऑफ प्रिंसेस एंड लैंड लॉर्ड्स। मैनी ऑफ देम वेयर ड्रॉन इनटू द स्ट्रगल as their survival was threatened by the British rule. They represented the traditional Indian political system and clung to their old ideas. Thought the leaders of the struggle fought with the aim of overthrowing foreign rule, at they thought of replacing it with the old order. लेकिन आंदोलन के कुछ बुनियादी कमजोरी थी जिनके कारण उसके सफल होने की कम उम्मीद थी। विद्रोह के नेतृत्व राजाओं और जमींदारों के हाथों में थी। उनमें से अनेक आंदोलन में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि ब्रिटिश शासन उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गया था। स्वतंत्रता संग्राम के नेता यद्यपि विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ रहे थे, मगर वह पुरानी व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहते थे। The struggle became famous only because of the support it relied from the public spony present sector, but the people could not establish an independent leadership. India called political associations at that time. Moreover, political unity was also poor. आंदोलन का व्यापक स्वरूप आम जनता, सैनिक, किसानों, दस्तकारों आदि के लिए सक्रिय सहयोग से प्राप्त हुआ था, मगर जनता एक स्वतंत्र नेतृत्व कायम नहीं कर पाई। उसी समय भारत की राजनीतिक चेतना की कमी थी, साथ ही राजनीतिक एकता का अभाव हुआ। There were other causes from which the struggle suffered. The Mughal Empire was accepted as the Empire of India by the freedom fighters, but all the freedom fighters were not united in their aim of overthrowing the British rule. The freedom fighters mostly fought in their own region. There was hardly any coordination among the forces fighting in different regions. Moreover, most of the Indian princes and chiefs who had been allowed to continue as rulers by the British supported the British during the struggle. The intensity
level of discounted against the British was not the same everywhere. In Punjab, for example, the British had established an orderly administration after a year of war. The people there were not as dissatisfied as in other parts of northern India. Therefore, thought there was sympathy for the freedom fighter. There were no large scale uprising in Punjab. स्वतंत्रता संग्राम की कई अन्य कमजोरियां थी। मुगल बादशाह को आंदोलनकारियों ने भारत का सम्राट मान लिया था। ब्रिटिश शासन को खा फेंकने का उद्देश्य से सभी आंदोलनकारी एकजुट नहीं हो पाए। अधिकतर आंदोलनकारी अपने खास इलाकों में लड़ते रहे। विभिन्न क्षेत्रों में लड़ रही शक्तियों के बीच ठीक से कई तालमेल नहीं बैठा। इसके अलावा जिन राजाओं और सरदारों को अंग्रेज़ों ने पदच्युत नहीं किया था, उनमें से बहुतों ने आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों का साथ दिया। ब्रिटिश शासन के प्रति सब जगह तीव्र असंतोष भी नहीं था। उदाहरण के लिए कई साल की लड़ाई के बाद पंजाब में अंग्रेज़ों के ने व्यवस्थित प्रशासन कायम किया था। वहाँ लोग उत्तर भारत के अन्य भागों की तरह असंतुष्ट नहीं थे। इसलिए आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति होते हुए भी पंजाब में बड़े पैमाने पर कोई संघर्ष नहीं हुआ। The struggle of 1857 marked the end of an era in Indian history. In the Indian political order of the 18th century come to an end. The Indian states that had not been annexed were allowed to exist, but they lost their independent entity. They formed a part of the British Empire for the all practical purposes. The company's role come to an end and the British government began to rule their empire in India directly. Several changes took place in the British attitudes and policies towards India. सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के साथ भारतीय इतिहास का एक युग समाप्त हो चुका था। 18वीं सदी में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अत्यंत पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। जिन भारतीय राज्यों पर अंग्रेज़ों का कब्जा नहीं हुआ था, उन्हें कायम रहने दिया गया, मगर उनकी स्वतंत्रता ख़त्म हो गई। व्यवहारिक रूप से वह ब्रिटिश राज्य के अंग बन गए थे। आंदोलन के पश्चात कंपनी का शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय साम्राज्य पर सीधे शासन करना प्रारंभ कर दिया। भारत के प्रति ब्रिटिश शासकों के नीतियां और भावनाओं में अनेक परिवर्तन हुए। थैंक यू।